Welcome once again, all of you, and I offer a warm welcome. Today, we are starting a new series. It's on business made simple topic. The accreditation is, I don't see it here, but I would still like to give due credits. It's loosely based on a book by Donald Miller called as Business Made Simple. He is quite a champ in business industry, and he is a life coach and a business coach to a lot of entrepreneurs. And he wrote this book, and there are a lot of other books from him which are very good on marketing and branding and so on. So today we cover, there are 60 lessons in this book entitled, or let's say planned to be absorbed over 60 days, one lesson every day. But we are going to be covering this topic in three different parts. Okay. So let's just jump into the topic without giving any more pausing any pausing for any more delay. Okay. So let's understand ये business made simple series क्यों जरूरी है हमारे लिए. ठीक है. We are all in business in some way or the other, right? We work, we have our responsibilities. तो someone might ask, अरे इसका क्या नीड है हमारे लिए ये किस काम आएगा. तो ये मेरे लिए सिर्फ काम का नहीं है, सबके लिए काम का है ये टॉपिक. बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ बिजनेस, वी आर ऑल आर पार्ट ऑफ जॉब्स, एंड वी ऑल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिलीवर. और इसमें जो लेसन हम सीखने वाले हैं वो लेसन सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है. इट आर लाइक यू ऑलवेज नो, आई ट्राई टू कवर topics which are quite hot selling, best selling, very full of wisdom, full of good qualities, so that they make you into a better professional overall, not just in your career, but also in your life overall. So you see a value driven professional photograph here, right? And you see the pointers, which are the essential 10 pillars that we are going to cover in terms of business. तो बिजनेस में क्या क्या आता है, देखो बिजनेस पे बहुत सारी बात हम करेंगे आगे भी. एंड इन पास्ट ऑल्सो वी हैव डन सम सेशंस अराउंड बिजनेस एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग एंड सो ऑन. बट सेल्स पे भी होगा एंड सो ऑन. सो टुडे, or let's say out of these 10-12 topics overall that comprise of these 10 topics comprise of 60 lessons. Like each topic has 5 to 6 slides or lessons, you can say. We'll be covering only three or four today. I think three only. And in the next two parts, we'll be covering the remaining of the 6-7 topics that will remain. So pay attention here. Now we'll be covering some three most important pillars of business today. One is character. I think second is productivity, and third is marketing. We see as we go along. So we'll understand. So these are the 10 things, or you can say 11 pillars that are part of all business folks, or they are, let's say, vertical paradigms or pillars, or let's say knowledge pillars that will help you to govern, drive, and run a successful business, even as a team member, or as a leader, or as an entrepreneur, or as any other, or whether you are in a service or whether as a businessman. Starts with character, productivity. I'll just read them out for you. Marketing, strategy. Strategy is nothing but creating goals for your business. Then sales. A lot of us are aware of this term. Negotiation is very, very important part. This is quite often missed in a lot of business trainings. Then we'll talk about leadership a little bit. Leadership is a very, very big topic. There are going to be separate end-to-end sessions, thoroughly dedicated sessions to leadership in the future. Then management, what is management and what is the difference between management and leadership? Most of us don't know, most of us aren't aware of that. Most of us think that basically leadership is management. Then we will talk about communication in the coming series. Execution is very important. It's more action oriented thing, because ideas don't get anywhere unless you start them, unless you work on them, unless you execute. Nothing actually happens at the end of the day. If we just keep talking, or if we just keep writing and taking notes and writing ideas, that won't get us anywhere. जब तक हम उसको execute नहीं करेंगे ना, प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा. प्लान बना के चिट्ठी लगा देंगे वॉल पे, अच्छा लगेगा, उसको देखेंगे, रोज फोटो खींचेंगे, सेल्फी लेंगे प्लान के साथ, बट वी वोंट कंप्लीट द प्लान, वी वोंट डिलीवर. Execution is very, very important there. Then messaging.
मैसेजिंग में सब आ जाता है, मैसेज टू द मार्केट, मैसेज टू योर कस्टमर्स, मैसेज इन योर एडवर्टाइजिंग, all the copywriting stuff, all the copy editing, all the marketing slogans, stories, pitches, mission statements, vision statements, punchlines, one lines, that will all be done in messaging. Okay, now let's get into the topic with the very, very powerful pillar. It's a big topic today. So let's start with character. तो देखो कैरेक्टर क्यों आया सबसे पहले, और कैरेक्टर क्यों आ रहा है इसमें बिजनेस ट्रेनिंग में, कैरेक्टर का क्या मतलब है? कोई बोलेगा मोरल वैल्यू उसका लेसन है क्या ये? तो कैरेक्टर से ही सब शुरू होता है, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट विद कैरेक्टर टुडे। तो इसको लाइटली मत लो। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यू कैन नॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, यू कैन नॉट गेट एनीवेयर इन लाइफ एक्चुअली। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यू वोंट गेट एनीवेयर। क्यों? क्योंकि लोग भरोसा ही नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। अगर कैरेक्टर ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो नो वन विल ट्रस्ट यू, no one will take your word for anything, and then you won't get anywhere because as alone you cannot do much, right? हम अकेले तो पूरी बिल्डिंग नहीं बना सकते, हम अकेले तो बिजनेस नहीं बना सकते, राइट? इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, इट्स ऑलवेज टॉक अबाउट टीम, ऑलवेज पीपल लीडिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ पीपल के साथ आते हैं ये सारे टर्म। स्ट्रेटेजी, ठीक है, स्ट्रेटेजी का भी एग्जीक्यूशन करने के लिए टीम लगती है, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी टीम लगती है ना, मार्केटिंग करने के लिए भी टीम लगती है, सारे पिलर्स को टीम लगती है, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। और इस टीम को बनाने के लिए वी विल बी टॉकिंग ऑफ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स। आई फॉरगॉट टू टॉक अबाउट दैट, आई एम सॉरी, बट these 12 pillars will make us or transform us into a value driven professional, or you can say action driven professional. Action driven से भी अच्छा वर्ड value driven है, because values we learn to value these key things. हम कुछ ऐसे स्किल्स सीखेंगे इस पे, कुछ ऐसे क्वालिटीज को जानेंगे जिससे हमारा वैल्यूज पे फोकस जाएगा। वी विल नॉट ओनली रिमेन नॉर्मल इंडिविजुअल्स। सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बोला, देखो काम करने में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने काम में माहिर होते हैं, उनको हम एक्सपर्ट्स बोलते हैं, प्रोफेशनल्स बोलते हैं। इसमें और थोड़ा आगे, एक स्टेप आगे बोला है, इसमें वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल्स वर्ड यूज किया है। क्यों वैल्यू ड्रिवन? बिकॉज वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैल्यूज आर योर ग्राउंड, वैल्यूज आर योर फाउंडेशन ऑन विच यू बिल्ड योर बिल्डिंग, ऑन विच यू स्टैंड। ठीक है, तो ग्राउंड ही हटा दोगे तो नीचे गिर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, खड्डे में चले जाएंगे। तो कैरेक्टर स्टार्ट होता है पूरी दुनिया का, कहें या किसी भी बड़ी प्रोजेक्ट का कहें, और यू टॉक अबाउट बिजनेस, फाउंडेशन इज योर कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर में क्या आता है? डज कैरेक्टर मीन जस्ट कीपिंग योर वर्ड, और डज कैरेक्टर मीन होल्डिंग ऑन टू योर बेसिकली डिजायर्स, और व्हाट डज कैरेक्टर मीन? तो नो कोर कॉम्पिटेंसी कैन ओवरकम दैट कैरेक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, नो अदर, आपके पास कितने भी क्वालिटीज होंगे ना, आप 1000 क्वालिटीज भी डेवलप कर लो, बट इफ देर इज अ लूज कैरेक्टर, if the character foundation is weaker, then people will not respect you, as simple as that. You may be a genius, but then you will still be scolded and abused, and forlorn by society. Why? Because character is the foundation. If we don't have good character, we are going to fail in business. Definitely, and in life 100%, absolutely. So good character is the foundation. What is the foundation on which you build the skills required? That is character. तो अभी यहाँ देखो बहुत सुंदर स्लाइड्स हैं हमारे यहाँ पे, हम एक एक करके उसको देखेंगे। We'll start with lessons. Each of these foundation or pillars that we talk about, like character is one pillar. जैसे हमने वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल डायग्राम में देखा, राइट? पर्सन इज स्टैंडिंग, और वो 11 पिलर्स का हमने नाम जाना अभी, राइट? तो उसमें से फर्स्ट वाला हम देख रहे हैं, कैरेक्टर में क्या क्या आता है, कितने लेसन हैं। तो लेसन 1 इज सी योर सेल्फ एज एन इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑन दी ओपन। क्या मतलब होता है? दिस इज क्वाइट अ माउथफुल, समझ में नहीं आया। सी योर सेल्फ एज एन इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑन द ओपन मार्केट। हम सब क्या करते हैं ना, हम अपने को इमोशनल ड्रिवन बींग्स देखते हैं, हम इमोशनल ह्यूमन बींग्स हैं हम सब। कोई हमारे पसंद के हिसाब से चलता है तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारे तरफ देख के मुंह उधर देख बाजू में देखने लगता है तो हमें गुस्सा आता है, राइट? घर वाले हमें रेस्पेक्ट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारी बात को अनसुना करके चला जाता है, चिढ़ के जवाब देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा जो सारा ड्राइव है, हमारा जो ड्राइव है, क्रेविंग्स है ना, वो इमोशंस के ऊपर बेस्ड है पूरा का पूरा। हमारा जो लाइफ है ना, वी आर ड्रिवन एंड मूव्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय आवर इमोशंस। इवन हमारे डिसीजंस, हमारी शॉपिंग, सब कुछ हमारा इमोशंस बेस्ड होता है। ठीक है, इमोशंस आते हैं, हमें पकड़ लेते हैं और फिर वी आर ओवर पावर्ड बाय देम, एंड देन वी आर कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स, वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर डिजायर्स, वी आर नॉट
remaining, we don't have our say then once we are driven by emotions. तो मार्केट में कैसा है ना, यू डोंट हैव टू ड्राइव योरसेल्फ बाय इमोशंस, यू हैव टू बिकम एन इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑन द ओपन मार्केट, विच वी आर एक्चुअली. तो वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल का क्या मतलब होता है? वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल जो है, एक प्रोफेशनल बंदा है जो जॉब करता है या जो बिजनेस में है या बिजनेस टीम को सपोर्ट कर रहा है या कंसल्टेंट है, किसी भी रोल में है वो, ठीक है. ही कुड बी एन ओनर और द फाउंडर और एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, ठीक है. तो ही इज एन इकोनॉमिक प्रोडक्ट. इकोनॉमिक प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? हमें पता है कि प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में, कुछ कमोडिटी होती है. आप चावल खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, वो सब कमोडिटीज है ना. आप शॉपिंग करते हैं और कुछ ड्रेस खरीदते हैं, वो भी कमोडिटी है. कमोडिटी का मतलब क्या होता है? जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, सेल की जाती है, राइट. तो हमारी जो जॉब में वैल्यू है, दैट इज प्रोडक्ट, बिकॉज यू ब्रिंग इन वैल्यू टू योर बिजनेस. Otherwise, you wouldn't be hired. Otherwise, I wouldn't be hired. Otherwise, we wouldn't be hired. It could be a business, it could be a job. So we are all economic products here. Economic product का मतलब होता है कि you are bringing a value to the bottom line of the business. Bottom line का मतलब होता है net profits. In financial jargons, bottom line is a euphemism, or it means basically net profits. Essentially, what business makes at the end of the day. अगर business profitable है, तो bottom line positive है. इसका मतलब net profits है business को. तो bottom line में जो effect लाता है, वो बंदे, that is economic product. How do most people, or how do successful people view themselves? We see ourselves as emotional beings. But what we are learning today here, as आपको पता है कि हम बहुत सारे myths तोड़ते हैं इन सेशंस में, we debunk a lot of things. That's why these sessions are there. That's why we are here to learn new things, right? तो वही वही जो पढ़ा है, जो सब हम ट्रेन हुए हैं, वही सब मैं बता दूंगा तो कुछ फायदा भी नहीं है उस ट्रेनिंग का. तो नई नई चीजें हम सीखते हैं. तो एक हम ये देखते हैं कि हमें इमोशनली नहीं देखना है बिजनेस में. बिजनेस में अपने आप को इकोनॉमिक प्रोडक्ट करके देखना है कि मेरी सैलरी 50,000 है, तो मैं 2.5 लाख का प्रॉफिट ला रहा हूँ क्या कंपनी को. दैट इज योर इकोनॉमिक वैल्यू. अदरवाइज देखो, हम बिजनेस में भी कैसे करते हैं ना, आप चावल का दुकानदार क्या करता है, एक सस्ते में बोरी खरीदता है 100 किलो का, फिर उसको 100 रुपए किलो से बेचता है 1 किलो, राइट. एंड ही इज अर्निंग 5 times or 10 times of that 100 kg, 1 quintal or one bag of rice, right? Same thing is with us. We are economic products. Wherever we are, we may be in business, we may be in jobs, as I said, but we are nothing but an economic product on the open market. Open market क्यों कहा? Not in our business, because market is there, right? Market has a value for everything. A dream team member, देखो यहाँ दूसरा point, gets his explorer or let's say owner or boss maybe a return of 5x or more. हमने 10x रूल के बारे में देखा था 10x सेशन में. 10x में हमने देखा था कि 10x गोल बनाओ, 10x एफर्ट्स लो. तो यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यू बताई जा रही है. आपकी इकोनॉमिक वैल्यू अगर 5x है ना, एज सिंपल एज दैट. आई टॉक इन वेरी वेरी प्लेन टर्म्स सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कैजुअल एंड क्लीन लैंग्वेज, ठीक है. आई डोंट लाइक टू हाइड अवे थिंग्स एंड गिव सम सिंपल डे टू डे एग्जांपल्स, ताकि आपको जल्दी से पकड़ में आ जाए. 5x का वैल्यू मैंने जैसे सिंपल एग्जांपल अभी ऑलरेडी आपको बताया कि अगर किसी एक एक्स प्रोफेशनल की सैलरी 50,000 है and he is making his company 2,50,000 every month, then he is performing good. That is 5x value. सीधा सीधा 5x. अगर आपकी सैलरी 5 लाख है, तो you should bring 25 lakhs to your founder or more. So this is minimum. So don't get me wrong, ये 5x से कम और 5x तक वाला लिमिट नहीं है, 5x प्लस लिमिट है actually. That is a market. ठीक है. Then key to moving ahead is becoming the best investment possible. Now, since we are economic products, we should be good investments for our owners, for our bosses, for our managers, right? For our colleagues, for the company, for the organization, or for the business we work for. See, don't get me wrong. I'm not talking about one company. I'm talking about value-driven professional. You may be a one-person company also. You may be a freelancer, or you may be a self-employed doctor. You should still be an economic product. You should still think of becoming the best investment possible. देखो, बेस्ट डॉक्टर के पास ही हम जाते हैं ना. अगर किसी को हार्ट का कुछ चेक करना है, तो वो नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास जाता है क्या? वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है. क्यों? बिकॉज ही ट्रस्ट हिम. ऑल्दो द सैलरी इज एक्चुअली 10x. नॉर्मल डॉक्टर का सैलरी और हार्ट स्पेशलिस्ट का सैलरी 10 टाइम्स होगा, बट वो फिर भी हार्ट स्पेशलिस्ट प्रेफर करेगा, बिकॉज ही वैल्यूज हिज हार्ट. द कस्टमर और द पेशेंट values his heart. He doesn't want to go to an unprofessional person or a weaker doctor. तो जब हम डॉक्टर को भी देखते हैं, तो हम बेस्ट डॉक्टर का इन्वेस्टमेंट देखते हैं. हम इन्वेस्टमेंट नहीं देखते, बेस्ट डॉक्टर को ढूंढते हैं.
Then when you walk into a room, do you know that instinctively they can bet on you? देखो, हम सब अलग अलग जगहों पे जाते हैं, हम मूवी हॉल्स में जाते हैं, गार्डन्स में जाते हैं, अलग अलग सिटीज में ट्रेन बसेस अलग अलग जगह घूमते हैं, तो कहीं कहीं ना कुछ चार्मिंग लोग हमें मिलते हैं जिनको देख के ही लगता है कि अरे इस पे बैट करना चाहिए, इस पे पैसा लगाना चाहिए। तो ऐसे मीटिंग में या बिजनेस में या कंपनी में कोई आदमी आता है, ठीक है, हायरिंग होता है, कोई ज्वाइन करता है, तो उसको देख के लोग कुछ जजमेंट बनाते हैं। तो अगर आप कहीं पे जाते हैं और आपको देख के ही बिना जाने लोग अगर आप पे बेट करना चाहते हैं, like you have such a confidence, such a splendor of skills, such an aura, people will say, हाँ, yes, this is the person. this is Maya. This is what I've been looking for. तो इस तरह का चार्म होता है वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल का। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। ये टोटल 60 लेसन जब आप पूरे सीख लोगे ना, इट विल टर्न यू इनटू अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। सो व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम, पीपल शुड बी एबल टू बेट ऑन यू इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली कहा क्योंकि लोग अभी जानते भी नहीं है आपको। आप नॉर्मल बार में एंटर कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में ऑर्डर कर रहे हैं और सबकी निगाह आपकी तरफ है, अरे भाई ये कौन है। व्हेन यू ऑफर, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये सिर्फ फेस और पर्सनैलिटी और ब्यूटी की बात नहीं हो रही है। दिस इज अबाउट योर ओवरऑल गेटअप, हाउ यू कैरी योर सेल्फ एंड कॉन्फिडेंस, and obviously your skills. Then when you offer more value, you are paid more, promoted sooner and given more responsibility and rewards. तो कोई बोलेगा यार ये सब इसके फायदे में बता रहे हैं, इसके फायदे में नहीं बता रहे, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में नहीं बता रहे, आपके फायदे में बता रहे। क्यों? क्योंकि when you offer more value, when you are an economic product and bring a 5x plus value to your employer or the company, you are offered more money. First of all, you are paid more, you get more promotions and sooner, जल्दी प्रमोशंस मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा सैलरी मिलेगा, एंड यू विल बी ऑल्सो ड्रिवन इनटू बेसिकली लीडरशिप। आपको लीडरशिप भी मिलेगा, यू विल गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड्स फॉर एनी वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। सो कैरेक्टर का पहला लेसन है कि स्टार्ट सीइंग योरसेल्फ एज एन इकोनॉमिक प्रोडक्ट ऑन दी ओपन मार्केट। डोंट सी योरसेल्फ एन इमोशनली ड्रिवन पर्सन एनीमोर। व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, यू आर नथिंग बट एन इकोनॉमिक प्रोडक्ट, because we are talking business today, right? we don't mean jokes here, we mean business, right, literally। तो हम बिजनेस के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो हम बिजनेस के स्किल्स को सीख रहे हैं। लेसन नंबर 2 ऑन द कैरेक्टर इज सी योरसेल्फ एज अ हीरो नॉट अ विक्टिम। तो ये देखो, इस पे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीपल लव टू जॉइन हीरोज ऑन द मिशन। देखो, कोई विक्टिम आता है हम आपके पास अपना दुखड़ा लेके, तो आपको मजा आता है क्या उसकी कहानी सुनने में? कोई बोलेगा आप सुबह से शाम तक ना मेरे साथ बैठो और मैं अपने देवदास वाले गीत गाऊंगा और आऊंगा और तुम तुम्हारे कॉफी लेके पीते रहो, तो तुम वो दिन स्पेंड करना चाहता है क्या? कोई भी नहीं करोगे तुम वो दिन स्पेंड, है ना? तुम कटा देते हो उस बंदे को, हटा देते हो। क्यों? क्योंकि विक्टिम के साथ कोई नहीं रहना चाहता है, राइट? लोग हीरोज के साथ रहना चाहते हैं। कोई हैरी पॉटर को पसंद करते हैं। हीरोज हीरोज आर लीडर्स, है ना? लोग हीरोज को पसंद करते हैं। तो डोंट बिकम अ विक्टिम। विक्टिम माइंडसेट ये बहुत देखो पुराना हो गया है हमारे समाज में ना। अभी ये ऐसा लगता है हमें कि हम रोएंगे तो सिंपैथी मिलेगा ना, ये उल्टा है। अभी ये आज और एक मिथ हम तोड़ रहे हैं। विक्टिम माइंडसेट डजंट वर्क एनीमोर। विक्टिम माइंडसेट लेकर जाओगे तो लोग भाग जाते हैं, अनलेस दे आर रियली रियली योर वेल विशर्स, वो भी बोर हो जाते हैं। फैमिली मेंबर्स को सुन के लेना पड़ता है, लेकिन फैमिली मेंबर्स भी एट आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम दे विल आल्सो आस्क यू टू बेसिकली पिक अप योर सॉक्स एंड गो, राइट, बेसिकली गो बैक इनटू द फील्ड। क्यों? क्योंकि विक्टिम माइंडसेट वोंट गेट यू एनीवेयर। थोड़ी देर के लिए रो लिया, आधा घंटा मन हल्का कर लिया, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर रो ही रहे हो रोज रोज ही रो रहे हो तो फिर कुछ तो प्रॉब्लम। सो सी योरसेल्फ एज अ हीरो। स्टार्ट, देखो, चेंज करो एटीट्यूड, अभी माइंडसेट चेंज करने के बारे में बताया जा रहा है। सी योरसेल्फ एज अ हीरो नॉट अ विक्टिम। अभी तो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, बट जैसे मैंने बताया कि दीज स्किल्स विल आल्सो हेल्प यू टू टेक अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। क्योंकि विक्टिम माइंडसेट नो वन रेस्पेक्ट्स और लव्स और केयर्स फॉर। People only love heroes, people only admire heroes. Your mission is too important to suffer the victim's fate। ये देखो, ये दूसरा रीजन है कि विक्टिम माइंडसेट क्यों नहीं रखना है। सिंपैथी वगैरह भूल जाओ। मिशन जो है आपका वर्ल्ड में, यहाँ हम सब इस वर्ल्ड में कुछ मिशन अदा कर रहे हैं, राइट? एवरी डे इज अ जैक जैक पैक डे फॉर यू। आपके लिए कोई शेड्यूल बनाया जाता है, नॉट जस्ट बिजनेस बट इन योर लाइफ ओवरऑल। तो हम सबकी जो लाइफ है यहाँ पर कुछ एक मिशन ड्रिवन है। हम सबके पास एक मिशन है, मीनिंग है लाइफ में। मेंस लाइफ, मेंस सर्च फॉर मीनिंग, राइट, वेरी फेमस बुक। तो योर मिशन इज टू इंपॉर्टेंट टू सफर द विक्टिम्स फेट। तो विक्टिम बन के मत बैठे रहो। विक्टिम बन के बैठे रहोगे तो मिशन कभी पूरा नहीं होगा। दैट्स व्हाई डोंट सफर योर मिशन, डोंट सेक्रीफाइस योर मिशन। इसीलिए विक्टिम बनना भी बेकार काम है, टाइम वेस्ट है वो, राइट? इट विल वेस्ट योर इमोशन।
जैसे मैंने बताया, थोड़ी देर के लिए रो सकते हैं, प्रॉब्लम है, डिस्कस कर सकते हैं किसी के साथ, बट दिस डजंट मीन कि विक्टिम माइंडसेट ही लेकर बैठ जाओ। ठीक है, बिकम अ हीरो, डोंट बिकम अ विक्टिम। लेसन नंबर 3, नो हाउ टू सी, हाउ टू डी एस्केलेट ड्रामा। तो ये सब कैरेक्टर में आ रहा है। देखो, अभी तो हम कैरेक्टर के पिलर में है। कैरेक्टर के पिलर में आता है कि बहुत सारी चीजें कैरेक्टर बिल्डिंग में, जैसे मैंने बताया कि कैरेक्टर बिल्डिंग का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप रास्ते में लोगों को सीटी मत मारो, या कैरेक्टर बिल्डिंग का इतना मतलब नहीं है कि आप अपनी बातों को पूरा करो, झूठ मत बोलो, सिर्फ इतना कैरेक्टर का मीनिंग नहीं है। कैरेक्टर हैज अ बिगर मीनिंग। कैरेक्टर का मीनिंग ये भी है कि आप अपने प्रोमिसेस खुद को दिए हुए भी फुलफिल करो। कैरेक्टर का मीनिंग ये भी है कि आप ड्रामा मत क्रिएट करो अननेसेसरीली, डी एस्केलेट करना सीखो ड्रामा को। देखो, दो लोग हैं, एक झगड़ा होता है या मीटिंग, कोई बिजनेस आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी रूम में, मीटिंग रूम में, राइट? तो दो तरह के लोग होते हैं, तुम्हें पता है। एक है जो उसमें आग डालते हैं एक जो है जो मजा लेते हैं उसमें से, उसमें फायरवर्क्स देखते हैं, अरे और डालो और डालो, और कमेंट्स पास करते हैं, और कुछ तो आग लगाते हैं, राइट? और एक दूसरे तरह के लोग हैं जो आग बुझाते हैं, तुमने देखा है जो। तो मुझे बताओ, प्रमोशन के लिए किसको लिया जाता है? प्रमोशन के लिए, आगे लीडरशिप्स के लिए ना, उन लोगों को लिया जाता है जो डी एस्केलेट करना जानते हैं ड्रामा को, जो उसमें से इमोशन हटाते हैं, जो जो बंदा ड्रामा कर रहा था उसको समझाते हैं और उसको हैंडल करते हैं। जो डिफ्यूज करना जानते हैं ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो खुद ही ड्रामा कर रहा है उसको कैसे आगे लिया जाएगा ना, जो अपने ही ड्रामा में है वो बंदा। ठीक है, तो डी एस्केलेशन ऑफ ड्रामा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ character. Seeing yourself as a hero and not a victim is also part of character. Seeing yourself as a economic product when you talk of economics because you are in business is also part of character. ठीक है, बेटर एंड कीप योर कूल एंड हेल्प अदर्स बी कूल, उन लोगों की रेस्पेक्ट की जाती है जो अपना कूल रख पाते हैं गुस्से की सिचुएशन में, आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन में, जो अपना काम नहीं छोड़ते हैं, जो अपना ब्रेन को लेकर आते हैं साथ में ऑफिस में, उनको ज्यादा रेस्पेक्ट की जाती है बिकॉज दे आर एबल टू मेंटेन देयर काम। ड्रामा, बट देखो ड्रामा कैसा है ना, ड्रामा इज एक्चुअली अ पॉलिटिकल एजेंडा। तो जो जो ड्रामा करता है, आपको भी, हम सबको पता है, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में हम मिले भी होंगे, ऑफिस में भी, कलीग्स में भी, पीछे भी, आगे के पीछे एक्सपीरियंसेस में, फैमिलीज में भी, डिस्टेंट फैमिलीज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ड्रामेटिक होते हैं, हमें पता है, जो हर बात पे ड्रामा करते हैं। लेकिन ना वो उनका हैबिट पैटर्न है, ऐसे समझो, या उनका पॉलिटिकल एजेंडा, बिकॉज ड्रामा इज हाउ सम पीपल अकम्प्लिश देयर एजेंडा। उनको बेटर तरीके मालूम नहीं है, तो उनको लगता है ड्रामा करने से मेरा काम हो जाएगा, बट दे डोंट नो एनी बेटर। बट ठीक है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड एंड मूव, लिफ्ट योर सेल्फ अप, है ना? तो उसमें अटको मत ड्रामा में। ड्रामा वाले को रेस्पेक्ट दो थोड़ी देर के लिए, दैट्स फाइन, बट यू नो दैट कि ये ड्रामा है, मुझे इससे ऊपर उठना है। एंड आई लर्न टू डी एस्केलेट ड्रामा बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम नॉट ओनली अ प्रोफेशनल, आई एम अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल। मुझे मेरे बिजनेस को, मेरे लाइफ को, मेरे करियर को चांद पर लेके जाना है, तो मुझे ये क्वालिटी सीखना है, और कैरेक्टर में डी एस्केलेशन का पार्ट भी आता है। ड्रामा करो मत, ड्रामा को डी एस्केलेट करो। लेसन नंबर 4 इज एक्सेप्ट फीडबैक एज अ गिफ्ट। तो देखो, यहाँ पे बत्ती गुल हो जाती है बहुत सारे लोगों की, राइट? क्योंकि फीडबैक तो क्रिटिसिज्म की तरह लगता है ना, हमें गाली की तरह लगता है। कोई बोलता है तुमने काम अच्छे से नहीं किया, तो हम अगेन नीज में सर डाल के बैठ जाते हैं, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट। नंबर 2, हम उससे बदला लेने की सोचते हैं उस आदमी से। क्यों? देखो, इतना गंदा एटीट्यूड है हमारा फीडबैक लेने के प्रति कि हम बदले की भावना पे आ जाते हैं। हमें लगता है अब रिवेंज लेना चाहिए, इस आदमी ने मेरी इंसल्ट की। इंसल्ट नहीं होता है, फीडबैक इज फीडबैक, राइट? फीडबैक, क्रिटिसिज्म, फीडबैक इज नॉट क्रिटिसिज्म, फीडबैक इज नॉट योर इंसल्ट। कोई लिटरल इंसल्ट कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ दैट एग्जांपल। बट लोगों को फीडबैक भी इंसल्ट की तरह लगता है। अरे मुझे कैसे बोल दिया, आई एम द बेस्ट, आई एम द ओनली बेस्ट हियर। तो इस तरह का जो एटीट्यूड वाले जो लोग हैं ना, उनको इंसल्ट की तरह ही लगता है फीडबैक भी। सिंपल फीडबैक भी वैसा लगता है, तो ऐसा मत बनाओ अपने आप को। इफ यू वांट टू बिकम अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल, यू शुड लर्न टू एक्सेप्ट फीडबैक एज अ गिफ्ट। व्हाई इट्स अ गिफ्ट? because people pay to get it, because we pay to get usability testing results from our user, isn't it? तो हम कस्टमर्स को पे करते हैं कि भाई हमें यूजेबिलिटी टेस्ट बताओ। यूजेबिलिटी टेस्ट क्या है? फीडबैक ही तो है। वेबसाइट क्या है? फीडबैक ही चाहिए ना। आप फीडबैक के बिना कैसे अच्छा प्रोडक्ट बनाओगे? सारा का सारा डिजाइन थिंकिंग जो है ना, सारा का सारा कस्टमर डिस्कवरी जो है, पूरा का पूरा स्टार्टअप बिल्डिंग प्रोसेस है ना, वो फीडबैक के ऊपर ही बेस्ड है। तो फीडबैक ही नहीं देगा आपको कोई, तो आपका कभी प्रोडक्ट अच्छा बनेगा नहीं। इसी तरह से हमारा, वी आर ऑल्सो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स, वी लर्न, राइट? वी आर ऑल्सो अ प्रोडक्ट इन द इकोनॉमिक मार्केट। तो हाउ विल वी बिकम बेटर अनलेस वी एक्सेप्ट फीडबैक? एंड इट्स अ गिफ्ट, ट्रस्ट मी, इट्स अ गिफ्ट। बिकॉज फीडबैक जल्दी मिलता नहीं है लोगों को, और फीडबैक जिनको मिलता है वो जो उसमें से इंप्रूव करते हैं ना, दे एक्चुअली शाइन आउट, दे बिकम
superstars. They become stars in their careers. Okay? इस पे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हम इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं इसका आज कि फीडबैक लेना कितना इंपॉर्टेंट है और फीडबैक मांगना कितना इंपॉर्टेंट है. कोई फीडबैक देता नहीं तो ऐसा मत सोचो मैं तो बेस्ट हूँ इसलिए मुझे फीडबैक देता नहीं है कोई, मैं तो स्टार हूँ. ऐसा मत सोचो. फीडबैक मांगो लोगों से जाके, है ना. एवरी मंथ यू सेट अप मीटिंग्स विद योर कलीग्स, विद योर बॉसेस, विद योर जूनियर्स एंड आस्क फॉर फीडबैक. आस्क देम सम क्वेश्चंस. मैं बताऊंगा अगर किसी को ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो क्वेश्चंस बता सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछो कि हाउ डू यू सी मी, डू आई डी वैल्यू यू, डू आई डी वैल्यू समवन. तो इस तरह के फीडबैक पूछोगे तो लोग आपको बताएंगे ऑनेस्टली. ठीक है. इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली टू गेन ऑनेस्ट फीडबैक अबाउट योर सेल्फ. हमें नहीं पता ना लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हम सिर्फ क्यूरियस ही रहते हैं बस कि ये आंटी मेरे बारे में क्या बोलती होगी, ये अंकल मेरे बारे में क्या. क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है ना. बिकॉज वी जस्ट कीप इमेजिनिंग अबाउट अवर सेल्फ इमेज इन माइंड्स ऑफ अदर्स. तो ये फीडबैक को ढूंढो, इसको लिटरली एक्सप्लोर करो, इसको फाइंड करो, उस पर इंप्रूव करो. दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ वैल्यू ड्रिवन प्रोफेशनल. डोंट टेक इट एज अ इंसल्ट और अदरवाइज.